ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ کہانی، ایاز شاہ اور خنسا کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیں پھر کہانی کی طرف۔ شاہ جی، آج پھر یہاں چلے آئے ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ایاز شاہ نے بیٹھتے ہوئے پان سے منہ لال کیے اس عورت کو دیکھا جو کوٹھا چلاتی تھی۔ ہاں جی، اب آنا جانا لگا ہی رہنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، آپ کی اس جگہ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جیسے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اچھا، پھر کیا خدمت کریں آپ کی؟ وہ پان چباتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہوں۔ ایاز شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ خدمت نہ کریں، بس مجھے میری پسند کا کام کرنے دیں، اور میں بھلا آپ سے چاہتا ہی کیا ہوں؟ وہ گزشتہ 1 سال سے وہاں آ رہا تھا اور اب سب اسے جاننے لگے تھے۔ بلا ذرا سلمیٰ کو۔ اسے دیکھتے ہوئے اس عورت نے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اپنی ایک لڑکی کو وہاں بلوایا تھا۔ سلمیٰ تقریباً 40 سال سے اوپر کی عورت تھی۔ وہاں سب حیران ہوتے تھے کہ وہ کم عمر لڑکیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ سلمیٰ کے پاس کیوں جاتا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایاز شاہ وہاں آتے اور ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے کی بھاری قیمت دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سب اس کے گرویدہ تھے اور روکتے نہیں تھے۔ سب جانتے تھے ایاز شاہ نے وہاں آ کر بھی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ سلمیٰ کو دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا بند کمرے میں وہ دونوں کیا باتیں کرتے ہیں۔ پہلے وہ عورت پریشان ہوتی تھی کہیں ایاز سلمیٰ کو بھگا نہ دے، پھر رفتہ رفتہ دن گزرے اور انہیں یقین آ گیا کہ وہ ایسا کرنے وہاں نہیں آتا۔ جو بھی تھا وہ اب 1 سال گزرنے کے بعد مطمئن تھی اور سلمیٰ کو خود بلوا کر اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ وہ دیکھنے سے 28 برس کا معلوم ہوتا تھا، دراز قد اور لمبا چوڑا سینہ۔ اٹھان اس کی بہت اچھی تھی، کسی ریاست کا شہزادہ ہوتا تو برا بھی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ ڈیسنٹ سی ڈریسنگ کر کے وہاں آتا تھا۔ اس نے سلمیٰ کے پیچھے قدم اٹھائے اور اس کے کمرے میں پہنچ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں یہاں اب نہیں آنا چاہیے، اگر راز کھل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، سلمیٰ نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ میں کس لیے ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے کندھے اچکا کر ہمیشہ کی طرح عام سا لہجہ اپنایا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہاری یہ لاپرواہی مجھے بہت گہرا نقصان دے سکتی ہے ایاز، سلمیٰ نے غصے سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو میں یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن آپ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی۔ میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں آتا ہوں، مجھے ایسی جگہ پر آنے کے لیے آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ اس نے بے بسی سے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے جتایا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی بیڈ کے پاس کونے میں بیٹھ گئی۔ مت آیا کرو، کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ غصے سے گویا ہوئی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اچھا، پھر ان سب میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور؟ آپ نے اسے لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ وہ چٹخ کر پوچھنے لگا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں خبر کہ میں کون ہوں اس کی، اور اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی محض 19 سال کی ہے، بہت چھوٹی ہے، اس کی آگے زندگی پڑی ہے۔ سلمیٰ نے اچانک اس کی جانب دیکھتے غیر مطمئن انداز سے کہا۔ ان کی بیٹی کا ذکر ہمیشہ انہیں ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، اسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ لاوارث دھکے کھا رہی ہے۔ اس نے غصے سے کھڑے ہوتے کہا تو وہ اسے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسے ملتی ہوں، وہ مجھ سے مل کر خوش ہو جاتی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بے بسی سے پوچھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں اچانک پانی بھرنے لگا تھا جو کسی بھی وقت سیلاب کی صورت آنکھوں سے رواں ہو سکتا تھا۔ آپ میری بات مان جائیں، میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، پھر بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں۔ آپ نے اس زندگی کو ترجیح دی ہے جس میں ہر روز آپ کی روح کو مجروح کیا جاتا ہے۔ وہ سلمیٰ کو دیکھتے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اب یہی ان کی زندگی تھی، اگر یہاں سے بھاگنے کا سوچتی بھی تو وہ عورت اسے مٹی میں ملا دیتی۔ یہاں سے ایک ہی صورت نکلا جا سکتا تھا،
और वो थी मौत। सलमा ने एक बार कोशिश की थी, उसका नतीजा बहुत बुरा निकला था। अब वो कोशिश करने से भी डरती थी। अयाज उन्हें देखकर चला गया। वो अपने अल्फाज को काफ़ी वक्त से उन पर ज़ाया करता आ रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था उनकी बेटी कहाँ और किस हाल में है। सलमा किसी को उसके बारे में बताती नहीं थी, कहीं उसके लिए कोई मसला ना बन जाए। वो गहरी सांस भरती दरवाजे को देखने लगी जिससे अभी अभी वो गया था। तुम्हारा दिल नहीं करता कि कभी तुम्हारी भी फैमिली होती, तुम्हारे घर वाले तुमसे बात करते? उसकी दोस्त ने थोड़ी पर हाथ लगाकर उसे देखते हुए पूछा। वो पहले यतीम खाने में थी, फिर हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी और अब खुद मुख्तार और डरपोक दोनों थी। बिल्कुल, हर इंसान को महसूस होती है रिश्तों की कमी, मुझे भी होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं खुद को उसी की कैद में रखूं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। और वैसे भी सलमा आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उसने कंधे उचकाकर कहा तो वो उसे देखने लगी। तुम सलमा आंटी से मुशाबत रखती हो, कहीं तुम उन्हीं की बेटी तो नहीं? उसने हैरत से उठते हुए खंसा को देखकर पूछा और वो उसे घूरने लगी। ऐसी बात ना कहो, वो कितनी प्यारी सी लगती हैं, ज़रूर किसी बड़े से घर में रहती होंगी। मैं उनके पैसों पर ही तो अयाशी कर रही हूँ। उसने बुरा मानते हुए कहा तो वो हंस दी। अगर तुम इसको अयाशी कहती हो, मुझे कभी ये अयाशी नहीं चाहिए। यूनी से हॉस्टल, हॉस्टल से बस पढ़ाई, इतनी गमज़दा सी ज़िंदगी है तुम्हारी, फिर भी कहती हो अयाशी भरी ज़िंदगी। वो अफसोस से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोल रही थी। मुझे उस यतीम खाने से अच्छी लगती है ज़िंदगी। कम से कम यहाँ अपनी मर्ज़ी से सांस तो ले सकती हूँ। वहाँ पर हर वक्त काम करवा कर भी गाली देते थे। वो जो ज़िंदगी गुजार कर आई थी, ये उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। कह तो ठीक ही रही हो, बहुत जालिम है तुम्हारे माँ बाप। जब पालना ही नहीं था तो पैदा भी ना करते। वो उठ खड़ी हुई। खंसा से वो खुद इस मौजू पर बात करती थी, फिर खुद ही भागती थी कि वो खंसा को हर्ट कर रही है। वो उसके भागने पर मुस्कुरा देती, सर झटक कर पढ़ाई की जानिब मुतवज्जो हो गई। आपका बाप मर चुका है जिसके वादे से आप बंधे हुए थे, फिर आप इस कम उम्र लड़की की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा लेते? वो गुस्से से बोल रहा था। तुम जानते हो मैं वादे से बंधा हुआ हूँ और हरगिज़ भी उस लड़की को सामने नहीं देखना चाहता। बस वो जहाँ रहे खुश रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन मुझे डर लगता है जब उसकी माँ का मालूम हुआ वो तवाइफ है, फिर कोई मर्द उसे कबूल नहीं करेगा। वो माथे पर हाथ रखते उसके सामने बैठे पूछ रहे थे। मैं होता कभी भी कबूल ना करता। मुझे अपनी इज्जत किसी भी इंसान से ज़्यादा अहम है। अयाज शाह संजीदगी से बोला तो वो उसे देखने लगे। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो एकदम गुस्से में आ गए थे। आपने गुनाह करते सोचा था, इसका असर आपकी बेटी पर क्या पड़ेगा? उसने सर्द लहजे में माथे पर बल डाले पूछा। आप जानते थे आप क्या कर रहे हैं, फिर भी आप दोनों ने ये रास्ता चुना। आप शादी भी तो कर सकते थे। उस लड़की को ज़िंदगी भर के लिए नाजायज़ बनाकर छोड़ दिया। और आप ये सोचें जब उस पर हकीकत खुलेगी तो वो क्या करेगी? अभी तक वो ये समझती है कि वो किसी माँ बाप की औलाद है जिसे वो पालना नहीं चाहते होंगे, या ये सोचती होगी कि वो लड़की है, उसके माँ बाप को बेटा चाहिए होगा। ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो नाजायज़ औलाद है जिसे ये मुआशरा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। मैं उसे आपकी बेटी की हैसियत से भी कभी कबूल ना करूँ, ये मेरी अना के ख़िलाफ़ है। वो तेज़ी से हकीकत बताता बिल्कुल मगरूर सा लग रहा था। कासिम साहब उठ गए। इतनी हकीकत उनके ऊपर टूटना ठीक थी, उससे आगे मज़ीद वो कुछ नहीं सुन सकते थे। अयाज शाह ने उन्हें जाते हुए देखा। वो कंधे उचकाकर सामने पड़ी फाइल्स देखने लगा। सलमा, आजकल तेरा बाहर आना जाना बहुत बढ़ गया है। क्या किसी पुलिस वाले से यारी दोस्ती लगा ली है? अगर हमें धोखा दिया इसका अंजाम पता है ना। एक दफ़ा माफ़ कर दिया था, आइंदा कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो औरत मुंह में गुटखा डालते करख्तगी से पूछ रही थी। आज सलमा खंसा से मिलने जा रही थी। वो बहुत मुश्किल से जाती थी, लेकिन उन्हें यही डर था कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि उनकी एक बेटी भी है। मैं बस पार्लर
उसके बाद शॉपिंग पर जाऊंगी। आपको मालूम है मेरा पहला और आखिरी ठिकाना यही है। वो उस औरत को जवाब देती वहाँ से चली गई थी। लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। खंसा से मिलने से पहले वो हमेशा ऐसे ही खुश हुआ करती थी। उन्हें वो वक्त याद आया जब वो 16 साल की उम्र में वहाँ लाई गई थी। वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। सौतेले भाई ने जुए में हारने के बाद सलमा को वहाँ बेच दिया था। कम उम्र और दोशीज़ा सी सूरत, वहाँ वो आते ही मशहूर हो गई थी। पहली रात किसी कयामत से कम नहीं थी। वो मजबूर थी, भागने की कोशिश करती रही और फिर हिम्मत हार कर खुद को उन सब के हवाले कर दिया। जब उनकी मुलाकात कासिम से हुई थी। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी मामा भी होती तो वो इतनी अच्छी ना होती। खंसा मुस्कुराकर उनके हाथ से पैसे ले रही थी। उसे फीस की ज़रूरत थी, इसी वजह से उसने सलमा को मैसेज किया था और वो उसका मैसेज देखते ही फ़ौरन उसके पास चली आई थी। सलमा को पुरानी होने की वजह से बहुत सी सहूलियात मुयस्सर थी जो कोठे की बाकी किसी लड़की और औरत को नहीं थी। वो बाहर आ जा सकती थी, मोबाइल था उनके पास, लेकिन आज़ादी बस वही नहीं थी। खंसा की बात सुनकर उनके चेहरे पर साया सा आ गुजरा। कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे मिलने की कोशिश की है? वो पूछ रही थी, जानना चाहती थी कासिम ने कभी ऐसा किया है। नहीं, अगर वो मेरे सामने आ भी जाएं तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकती। वो हंसकर बोली। तो वो अफसोस से सर हिलाने लगी, लेकिन अंदर से दिल कट कर रह गया था। मैं एक नंबर दे रही हूँ, अगर कोई मसला परेशानी हो तो उस पर कॉल कर लेना। उन्होंने अयाज शाह का नंबर इसे सेंड किया। वो सर हिलाती ये भी ना पूछा कि वो कौन है। वो किसी के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद ही नहीं थी। वो वापस चली गई और वो हमेशा यूनी के बाद उससे मिलने जाती थी। मुझे लग रहा है सलमा किसी से मिलती है बाहर और पहले की तरह एक बार फिर भाग जाएगी, उस औरत ने अपने सामने बैठे आदमी से कहा। भाग कर दिखाए, इस बार जान ले लेंगे इसकी, उसने मूंछों को ताव देते हुए कहा। तो वो उसे देखते सर हिलाने लगी। अब वो रिटायर होती जा रही है, मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं रही। दिन ब दिन सेहत गिर रही है उसकी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसे कोई बीमारी भी है, बस मुझे ये बात नहीं सुननी, उसने धोखा दिया है। वो औरत माथे पर शिकन लिए कह रही थी और उसने सर हिला दिया। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मैं तैयार हूँ। वो आदमी हंस रहा था। उस औरत को इस आदमी की सलाहियत पर यकीन था। वो मुसलसल अब रोज़ खंसा से मिलने चली आती थी। अयाज शाह उस दिन के बाद से नहीं आया था। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी। उन्हें यकीन था उन्हें कोई बीमारी है और वो जानने से डर रही थी। उस शाम उनकी किस्मत ख़राब थी। उस ख़ास आदमी ने सलमा को उस लड़की से मुलाकात करते देख लिया। वो मूंछों को ताव देते कोठे पर पहुंचा और सलमा के आने से पहले उस खूबसूरत लड़की के बारे में बताने लगा। पहले वो औरत हैरान हुई, फिर माथे पर शिकन डाली। पूरा 1 साल सलमा गायब रही थी। क्या उसने बेटी को जन्म दिया था? हम सब जानते हैं वो उस आदमी से मोहब्बत करती थी और उसके साथ भाग गई थी। क्या वो उसके निकाह में थी? वो औरत हैरत से पूछते उसे देख रही थी। वो कंधे उचका गया। ये बात तो सलमा ही बता सकती है भाई, उसने अंगूर मुंह में डालते हुए कहा। पता करो वो लड़की क्या इसकी बेटी है? अगर हाँ तो उसे हम सलमा से छुटकारा हासिल करके यहाँ रख लेंगे। वो तस्वीर में लड़की को देखकर मुस्कुरा रही थी। सलमा जब वापस आई अपने कमरे में बैठी थी। एक लड़की उसे खाना देने आई तो वो सीधी होकर बैठ गई। साड़ी का पल्लू ठीक करते उसे देखा। कोई परेशानी है? उन्होंने खाना प्लेट में निकालते इसे देखकर पूछा। वो मुसलसल उन्हें देखती तजब्जुब का शिकार थी। जी वो दोनों की बातें सुन चुकी थी, इसलिए उन्हें आगाह करने आई थी। बोलो, वो मुस्कुराकर बोली। उन्हें छोटी उम्र की लड़कियां खंसा की तरह लगती थीं। वो आपकी कोई बेटी भी है? उसके सवाल पर सलमा ने झटके से खाने पर से झुका हुआ सर उठाया। आंखों में बेपनाह हैरत थी, यूं के सांस ही रुक गई हो। तुम्हें कैसे पता? वो हैरत से पूछने लगी। दिल में अचानक डर सा बैठ गया था। वो बाई और वो आदमी बात कर रहे थे। वो आपकी बेटी को यहाँ लाने वाले हैं और आपसे जान छुड़वाना चाहते हैं। आप अपनी बेटी को शहर से भगा दें, वरना उसकी किस्मत भी हमारी तरह हो जाएगी।
वो रोते हुए बोल रही थी। सलमा के लबों पर गहरी खामोशी छाई रही। अंदर से दिल डूब रहा था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उनके गुनाहों की कीमत उनकी बेटी अदा करे, ऐसा वो होने नहीं देंगी। वो लोग आपको ख़त्म कर देंगे, वो सिसकी भरकर बोली तो वो उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उन्होंने फ़ौरन मोबाइल लिया। नीचे से आवाज़ें आ रही थी। बाई, वो औरत उस एसपी से मिली हुई है, वो अयाज शाह एसपी है। वो नीचे खड़ा धाड़ रहा था और सलमा के हाथों में थामा हुआ मोबाइल लरसने लगा। तेज़ी से दरवाज़ा लॉक करते उन्होंने अयाज को कॉल मिलाई। बेल मुसलसल जा रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। दरवाज़ा खोल कमबख्त औरत, बाई दरवाजे के पार से चीख रही थी और सलमा के हाथ पांव फूलने लगे थे। अयाज प्लीज़ मेरी मदद करो, इन्हें मालूम हो गया है कि तुम एसपी हो। ये लोग मेरी बेटी को मेरी तरह बना देंगे, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो वॉइस नोट भेजकर मोबाइल छुपा चुकी थी। दरवाज़ा धाड़ से खुला और वो तेज़ी से सलमा की जानिब आई। बालों से पकड़कर घसीटा, सीढ़ियों से ले जाकर वहाँ से धक्का दे दिया। वो नफ़ी में सर हिलाती रोती इल्तिजा कर रही थी कि उनकी बेटी को छोड़ दिया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो नीचे गिरी बेहाल सी थी। अस्पताल ले जाओ, कोशिश करना वहाँ से इसका जनाजा ही आए। बाई ने नफरत भरी निगाह सलमा के वजूद पर डाली। वो दर्द से करा रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अयाज ने जैसे ही वॉइस नोट सुना वैसे ही उल्टे पैर भागा। पता करवाने पर मालूम हुआ कि वो अस्पताल में है। वो डॉक्टर के भेस में अस्पताल पहुंचा और उनके रूम में चला आया तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, लास्ट स्टेज था, लेकिन सीढ़ियों से गिरना उनकी मौत को आसान कर गया। अयाज, वो हौले से उसे पुकारने लगी तो वो तेज़ी से उनकी सिमत आया। जी। वो गमगीन हो गया। उन्हें हमेशा तैयार और साड़ी में देखा था और आज उन्हें पशमुर्दा देख रहा था। खंसा तुम्हारे हवाले है। मेरे कमरे में मोबाइल है, उससे राब्ता कर लेना, उसे अपने निकाह में ले लेना, वरना ये लोग उसे मेरी तरह बना देंगे। अयाज, मुझसे वादा करो, तुम मुझसे शादी कर लोगे। वो रोती तड़पती आखिरी सांस को सीने में रोके उसे वादा चाहती थी और अयाज ने सर हिला दिया तो वो सुकून से आंखें बंद कर गई। अयाज ने उनका सर हिलाया लेकिन अब वहाँ ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। अयाज ने ही सारा इंतज़ाम करवाया था, उन्हें वापस उस जहन्नुम में ले जाने ना दिया। वो परेशानी से बैठा था। उसे मोबाइल हासिल करने के लिए रेड करवानी होगी। उसने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन बड़ा अफसर बाई के साथ मिला हुआ था। अगर वो खुद से कोशिश करता तो उसे मुअत्तल कर दिया जाता, इसलिए चुप बैठना पड़ा। खंसा को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने सलमा को कॉल मिलाई, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। उसे लाजमी पैसे चाहिए थे। वो दांतों में उंगलियां दबाए बैठी सोच रही थी, अब क्या करे। फीस ना दी तो इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसने मजबूरी में अयाज का नंबर मिलाया। कॉल बेल 2 दफ़ा गई और फ़ोन उठा लिया गया। मैं खंसा बात कर रही हूँ। आपसे सलमा आंटी ने कहा था इमरजेंसी में राब्ता करूँ। मुझे सलमा आंटी से बात करनी है। वो परेशानी से बोलने लगी। दूसरी जानिब खामोशी के बाद वो बोला, अपने हॉस्टल का एड्रेस सेंड करो। वो सख्ती से बोला तो वो उसे सेंड करके इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे बाद वो वहाँ हाजिर था। मुझसे निकाह करना होगा तुम्हें, वो उसकी कलाई थाम कर बोला। क्या? वो हैरान हुई। सलमा आंटी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, और हाँ, वो तुम्हारी आंटी नहीं माँ थी, एक तवाइफ। वो गुस्से से धड़ा। उसे निकाह नहीं करना था, इसीलिए गुस्सा इस मासूम पर निकाल रहा था और वो हैरान परेशान उसे देख रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो उसने मोबाइल निकाला और उनके सारे वॉइस नोट उसे सुना दिए, जिसमें खंसा का ख़ास जिक्र था, उनकी बेटी। वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। ए लड़की, दरवाज़ा खोल। बाहर कुछ लोग उसका दरवाज़ा बजा रहे थे। खंसा तेज़ी से उठी और अयाज की शर्ट थाम ली। उसने पलटकर अपनी शर्ट उसकी मुट्ठी से आज़ाद की। बीवी हो तुम मेरी, चलो। वो गुस्से से उस पर गुस्सा करते आगे आया। दरवाज़ा खोला तो सामने बाई के आदमी थे। ये बीवी है मेरी, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, पुलिस स्टेशन में इलाज होता है।
वो गुस्से से दौड़ा तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे। खूबसूरत बीवी को कौन छोड़ता है, वो कहकहा लगा कर हंस दिए। इससे पहले अयाज उनकी अकल ठिकाने लगाता वो सब भाग निकले। वो तेज़ी से खंसा का सामान पैक करने का कहते वहाँ से लेकर निकला। वो जगह अब उनके लिए महफूज नहीं थी। अयाज ने कोर्ट मैरिज करते उसे अपने निकाह में ले लिया था। घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे निकाह में हो। जब तुम्हारे लिए मुझे बेहतर ऑप्शन मिला तुम्हें खुद से आज़ाद कर दूंगा, जब तक मुंह बंद रखना। वो गुस्से से दौड़ा। वो गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर सर हिलाने लगी। उसके घर वाले उसे इस लड़की के साथ देखकर हैरान हुए। क्या कोर्ट मैरिज कर ली है? उसका छोटा भाई उसे देखकर छेड़ने लगा। सारे घर वाले उन दोनों को देख रहे थे। ये लड़की अकेली है और बेसहारा है, इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ। एक केस में मिली थी, कहीं और ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। आप लोग जानते हैं हमारे माशरे के हालात, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। उसने सारा हाल बताते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगे। उसकी माँ ने खंसा को गले से लगा लिया। बहुत अच्छा किया, इतनी प्यारी बच्ची है और लोगों की 100 तरह की नज़रें होती हैं, वो अफसोस से कह रही थी। इसे अपना घर समझो, वो मोहब्बत से कह रही थी और वो सर हिलाने लगी। वो सदमे में थी। यहाँ लाने से पहले जो हकीकत उसके सामने आई थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए वो खामोशी से लब को चलती रही। अयाज शाह उसे अपनी फैमिली के पास छोड़कर चला गया था, जबकि वो उनके सवालों का जवाब दे रही थी। उसने नहीं बताया था कि वो एक तवाइफ की बेटी है। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। क्या अयाज अपने घर वालों और दुनिया वालों की वजह से खंसा को अकेला छोड़ देगा? और क्या खंसा सब कुछ जानने के बाद उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगी, जबकि उसे मालूम है कि अयाज उससे नफ़रत करता है? या फिर वो वहाँ से चली जाएगी? ये सब कुछ तो हमें कहानी के अंजाम पर ही जाकर पता चलेगा कि खंसा की कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। उसे वहाँ आए 2 महीने गुजर गए थे। उसका सामना अयाज शाह से बहुत कम होता था। अगर होता भी तो वो नज़रें चुरा कर गुजर जाता, जैसे उसे जानता तक ना हो। उसे वहाँ लाने के बाद उसने बता दिया था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर वो परेशान हुई। काफ़ी दिनों तक रोती भी रही। वो सुबह का गया रात को आता था। उस रात वो लेट आया तो उसे चाय पीने की चाह हुई। वहाँ किचन में खंसा खड़ी बर्तन धो रही थी तो वो उसे देखकर ठुठक कर रुक गया। तुम ये काम क्यों कर रही हो? मुलाजमा कहाँ है? वो हैरानगी से पूछने लगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ये काम देकर वो आराम करने गई हैं। वो बोली तो उसने माथे पर बल डाले। कोई तबीयत ख़राब नहीं है उसकी, काम चोर है 1 नंबर की, उसने गुस्से से कहा और मुलाजमा को बुलाने लगा। उसने मुलाजमा से चाय बनवाई थी। मुलाजमा को गुस्सा आया कि खंसा ने उसकी बुराई की थी। आप कब सबको बताएंगे? वो ऊपर की जानिब जा रहा था जब खंसा उसके पीछे चली आई। श्श, उसने गुस्से से मुंह पर उंगली रखी और हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले गया। नीचे खड़ी मुलाजमा मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत बन जाएगी। मैं तुम जैसी लड़की से निकाह नहीं कर सकता था। जब तक मुझे तुम्हारे लिए कोई काबिल इंसान नहीं मिल जाता, जब तक इस निकाह को छुपा कर रखो। जैसे ही कोई माकूल लड़का मिला मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा और खामोशी से जैसे निकाह किया था वैसे ही तलाक दे दूंगा। उसने माथे पर बल डाले उसे करीब किए समझाया। उसके मासूम नैन नकोश इसे उलझा रहे थे। उसने ध्यान इधर उधर करना चाहा, लेकिन उसके सामने होते मुश्किल हो रहा था। वो नाजुक सी लड़की को हवासों पर सवार नहीं कर सकता था। और वो थी कौन? एक तवाइफ की बेटी। वो हरगिज़ भी उसे देखने और मोहब्बत करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। जाओ यहाँ से और मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, वो उसे तेज़ी से कहते दूर कर गया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी मामा ने आपसे निकाह कुछ सोच कर करवाया है। आप जानते हैं मेरी मामा ऐसा करना नहीं चाहती थी, ये उनकी मजबूरी थी।
वो आंसू बहाती बोली। मजबूरी? मैं उन्हें 1 साल से फोर्स कर रहा था कि वहां से निकल जाएं। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन्होंने मौत चुन ली, लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ा। वो गुस्से से फिंकारता हुआ उसे दरवाजे से बाहर धकेल गया और वो सिसकी भरती वहां से निकल आई थी। उसका सांस रुक रहा था। उसे अस्थमा था, इस वजह से उसे दवा की शदीद ज़रूरत थी। वो तेजी से दवा लेने कमरे में गई थी। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? वो सरगोशी में पूछ रही थी। उस आदमी ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। जानता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अपनी जिंदगी से परेशान होकर इस जगह आया था, लेकिन तुम्हें देखकर दिल हार बैठा। कासिम की आवाज़ उसके वजूद पर बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। मैंने ऐसी मोहब्बत पाने की चाह छोड़ दी थी। सलमा नम आंखों से बोली तो कासिम ने पास करते हुए माथा चूम लिया। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, तुम फिक्र मत करना। उसने मुस्कुराकर नरमी से सलमा के गाल सहलाए थे कि वो शर्म से सुर्ख हो गई थी। कासिम वहाँ आने वाले मर्दों में शामिल था जो 2 वक्त सुकून का हासिल करना चाहते थे, चाहे वो सुकून हराम की जिल्लत से मिल रहा हो। कासिम की निगाह सलमा पर पड़ी तो किसी दूसरी औरत का होश ही नहीं रहा। सलमा से मिलना और वक्त गुजारना इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसे उस कैद से आज़ाद करवाने के लिए पर तोलने लगे। उन्होंने अपने घर वालों से सलमा के लिए बात की और बात ख़ानदान पर आकर ठहर गई कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। कासिम ने बताया वो कोठे पर होती है। वो ये बात छुपा भी लेते तो मालूम तो हो जानी थी। उनके बाप ने बहुत गुस्सा किया और कासिम को घर से निकाल दिया। वो सलमा के पास पहुँचे और वहाँ से उसे लेकर साथ ही भाग निकले। वहाँ से बहुत दूर ले आए थे, लेकिन एक डर था उनके दिल में जो बैठा रहा कि अगर उन्होंने सलमा को अपना नाम दे दिया तो उनके अब्बा जी जायदाद का हिस्सा उन्हें नहीं देंगे, जो कि करोड़ों का था। फिर उन्होंने निकाह नहीं किया, बल्कि सलमा के साथ ऐसे ही 2 माह गुजार दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो माँ बनने वाली हैं और अब उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। कासिम ने माथा पीटा कि ये उनसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया था। उससे अगले दिन वो सलमा को छोड़कर भाग निकले। वो उनके प्राइवेट अपार्टमेंट में अकेली पड़ी उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। उनके अब्बा ने कस्में वादे देकर उन्हें बांध दिया था, जिसके बाद वो सलमा से कभी ना मिले। सलमा 2 माह वहीं इंतज़ार करती रहीं, फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। वो कासिम के घर चली आई थी, जहाँ से उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। वो रोती पीटती अस्पताल गईं कि अबॉर्शन करवाकर इस बच्चे से जान छुड़वा ले। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ऐसा नहीं हो सकता, कम उम्री की वजह से जान जा सकती है। वो परेशानी से अपना वजूद लिए छुप गई थी। उन्हें एक फ़कीरनी का झोंपड़ा मिला था। वो खुद 3 वक्त मुश्किल से खाती थी, सलमा को 1 वक्त खिला दिया करती। 9 माह बहुत मुश्किल से सलमा ने गुजारे। बच्ची को जन्म देते ही वो झूले में डाल गई और उसके बाद वापस कोठे पर आ गई। उन पर बहुत जुल्म हुआ। वो भागी क्यों थी जब आना था? वो बर्दाश्त कर गई। भूखे पेट ने सोच सलब कर दी थी। वो इन सालों में जानती थी खंसा कहाँ है, कैसी है। वही फ़कीरनी उन्हें सारी बातें बताती थी। वो मुतमईन थी। फिर उन्होंने उसके वहाँ से निकलते ही मिलना शुरू किया। वो सलमा से कहती कि वो उसे जानती है, लेकिन वो नहीं जानती। वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। कासिम अयाज शाह के बाबा के दोस्त थे। एक दफ़ा अयाज शाह कोठे पर गया था। वहाँ सलमा से मिला और हैरान हुआ कि वो वैसी नहीं है जैसे वहाँ की बाकी लड़कियाँ हैं। वो सलमा का नाम सुनकर ठुठक गए। वो पुलिस में ऑफिसर थे, जिसकी वजह से अयाज उन्हें अपडेट देता था। अयाज शाह से मालूम करवाया कौन सी सलमा है। सलमा से पूछने पर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अयाज शाह ने अफसोस किया और बताया कि वो कासिम को जानता है। यहाँ से सलमा और अयाज के दरमियान एक रिश्ता सा बन गया। वो अपनी बेटी के बारे में बताती थी, लेकिन एड्रेस नहीं देती थी कि कहीं कासिम वहाँ ना पहुँच जाए। लेकिन वो अपने बाप के वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने वादे की वजह से कभी सलमा और बच्चे से मिलने की कोशिश ही ना की थी। अयाज शाह ऐसे बुज़दिल बाप के होते हुए कुड़ कर रह जाता। वो खंसा को कबूल ना करता और ना ही कभी कर सकता था, इसीलिए उसके लिए माकूल रिश्ता ढूंढ रहा था। खंसा, सुबह से मुलाजिम कह रहे हैं तुम रातों को अयाज के कमरे में जाती हो। अयाज की माँ ने हैरत से पूछा। वो उसे मासूम समझ रही थी। ऐसा नहीं है, वो कुछ पूछ रहे थे। वो सिसक कर बोलने लगी।
तुम इस घर से दफा हो जाओ, मासूम समझकर तुम्हें यहाँ रखा हुआ था, और तुम यहाँ मेरे घर में नकब लगाने पर तुले हुए हो। वो गुस्से से कहती उसका हाथ थामकर बाहर निकालने लगी जब खंसा उनके पाँव में गिर गई। मैं अयाज शाह की बीवी हूँ, हमारा कोई हराम का रिश्ता नहीं है। वो मुझे मेरी मम्मी की वजह से कबूल नहीं करते। वो तवाइफ थी, इसमें उनका क्या कसूर? वो हालात की सताई हुई थी। वो रोती हुई सारी बात बता गई। जब वो सब जलजले से मलबे तले दब गए थे। क्या कह रही है? ये लड़की पागल है, मेरा बेटा नाजायज लड़की से। वो पागल होती चीख रही थी। सारे घर वाले शौक में थे। खंसा उठकर वहां से कमरे में भाग गई। अयाज उसी वक्त वहां आया और उन सबको सरापा सवाल पाकर हैरान रह गया। उसने सवालिया नज़रों से तमाम घर वालों की तरफ देखा तो उसकी माँ उसके करीब आ गई। वो लड़की कौन है अयाज? वो गुस्से से पूछ रही थी। वो लड़की सब बता कर गई है। वो लड़की तवाइफ की बेटी है, एक नाजायज़ औलाद। वो गुस्से से धाड़ रही थी जैसे छत ज़मीन पर गिरा देंगी। अयाज ने माथे पर हाथ रखा। ये सब आपसे उस लड़की ने कहा है? वो हैरत से पूछने लगा। हाँ, खुद बता कर गई है। उसे निकालो इस घर से। वो गुस्से से बोलने लगी तो वो माथे पर बल डाले गुस्से से उसके कमरे की जानिब जा रहा था। वो सिसकी भरती बेड पर औंधे मुंह पड़ी थी। वो उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। मना किया था किसी को हमारे निकाह का मालूम ना पड़े, फिर कैसे? अयाज शाह गुस्से से सुर्ख होता हर चीज़ को तोड़ फोड़ करता उस पर धाड़ा। उसके इस जारहाना अमल पर वो कोने में रोती हुई उसे नम निगाह से देख रही थी। वो उसे देखते गुस्से से उसके करीब खंसा का बाजू बेरहमी से मोड़ गया। प्लीज़, मुझे सांस नहीं। वो रोती सांस लेने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो उसे मुसलसल सख्ती से दबोचे हुए था। शट अप, बहुत नाटक हो गए तुम्हारे। वो समझा कि वो नाटक कर रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे रुकना पड़ा। उसकी बिगड़ी हालत देखता वो परेशान सा उस पर झुका। वो सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। उसे फौरन झुककर CPR देने लगा जब खंसा की आंखें फटी थीं। वो हाथ से इशारा करती अपनी दवा मांग रही थी। वो तेज़ी से इन्हेलर लेकर उस तक पहुंचा और उसके मुंह में पुश करने लगा। वो सांस बहाल होते ही रोने लगी। वो बात बताने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे कह रही थी, मैं आपके कमरे में रातों को जाती हूँ, मेरी इज्जत बहुत कीमती है मेरे लिए। वो सर झुकाकर बोलने लगी तो अयाज शाह ने गहरी सांस भरी। मेरी भी इज्जत मेरे लिए बहुत कीमती है। मामा अब कह रही हैं तुम्हें तलाक दूं। वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। उसका उलझा बिखरा हुलिया अयाज को और उलझा गया। उसकी मासूम सूरत और नम आंखें। वो अपनी इज्जत का ख्याल रखती उसको बता रही थी कि वो तोहमत बर्दाश्त ना करने के सबब ये सब बता गई कि वो उसकी बीवी है। मामा को लगेगा हमारे दरमियान रिश्ता कायम है, जबकि तुम जानती हो इस रिश्ते की नौयत क्या है। वो एक बार फिर गुस्से में आ गया था तो वो सर हिलाने लगी। आप मुझे हॉस्टल छोड़ दें। वो नज़रें उठाकर उसे देखते हुए बोली तो वो माथे पर बल डाले उसे देखने लगा। जिस इज़्ज़त को बचा दे तुमने ये सब किया है, वो इज़्ज़त हॉस्टल जाते ही 2 मिनट में गायब हो जाएगी। वो उसको कंधे से थाम कर बोला तो वो रोने लगी। चुप, बिल्कुल चुप। उसने खंसा के लबों पर उंगली रखकर चुप करवाया और वो सर अज़बात में हिलाती चुप हो गई। वो लबों की नरमी महसूस करता उससे दूर हो गया। वो लड़की इसे पागल कर रही थी। ये सब होने के बाद घर में मामलात मज़ीद ख़राब हो गए थे। उसकी माँ, भाई, बहन, बाप सब उसे खंसा को तलाक देने की तरगीब दे रहे थे और वो था कि उलझा हुआ था। उस शाम वो परेशान ऑफिस में बैठा था। उसने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया था। जब कासिम उसके ऑफिस में दाखिल हुए और उसको परेशान देखकर वजह पूछने लगे। आपकी बेटी की वजह से परेशान हूँ। मिस सलमा उसे मेरे निकाह में दे गई है और अब हकीकत मेरे घर वालों को मालूम हो गई है कि वो आपकी और सलमा की नाजायज़ औलाद है। वो मुझ पर प्रेशर डाल रही हैं कि मैं तलाक दे दूँ। वो सद मैरी से कह रहा था, हमारे किए की सज़ा तुम किसी मासूम को दोगे? वो गुस्से से पूछने लगे।
آپ نے بھی اس کی ماں کی معصومیت اور کم عمری کا فائدہ اٹھایا تھا، بھولیے مت۔ وہ سیخ پا ہوا۔ غلطی ہو گئی تھی، اس کی آج تک تلافی کر رہا ہوں۔ شادی نہیں کی میں نے، باپ یہی صدمہ لیے چل بسا، لیکن میں شادی نہیں کر پایا۔ مجھے لگتا تھا اگر شادی کر لی تو سلمیٰ مجھے بد دعا دے گی۔ اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ غصے سے بول رہے تھے۔ آپ کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں؟ اس نے بھی غصہ دکھایا۔ خنسا کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ میرا اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے رہ کر تھک گیا ہوں۔ وہ آ جائے گی تو رونق بھی لگ جائے گی۔ وہ بولے تو ایاز سوچ میں پڑ گیا، اور پھر طے ہو گیا کہ وہ اسے اس کے باپ کے پاس چھوڑ رہا ہے۔ اس نے اسی رات خنسا کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ وہ چھوڑ کر گیا تو مر جائے گی۔ اسے باپ کے پاس جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ جب سے اپنے باپ کے گھر آئی تھی کمرے میں بند رہتی تھی، سسکیاں بھرتی رہتی۔ دوسری طرف ایاز پریشان تھا، خنسا کو اب گھر میں ڈھونڈتا تھا۔ جب پاس تھی تو قدر نہیں کی تھی، اور اب دور ہوئی تو چاروں طرف وہی نظر آ رہی تھی، اور ایاز بے بسی کی مورت بنا ہوا تھا۔ تم نے طلاق دے دی اس لڑکی کو؟ اس کی ماں پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں دی، وہ نفی میں سر ہلاتے بولا۔ اسی وقت قاسم کا میسج موصول ہوا۔ کل کیا خنسا کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ اچانک اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ میں خیال رکھتا ہوں، لیکن تمہارے علاوہ اس کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم گھر آ جانا، میں شام میں چلا جاؤں گا۔ رات تک جانا، اس کا خیال رکھنا۔ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، مجھے ارجنٹ جانا ہے۔ وہ اسے اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ ایاز کو لگا یہی موقع ہے اس کے پاس رہنے کا۔ وہ بھی اوکے کہہ کر انتظار کرنے لگا جب کل شام ہوگی اور وہ خنسا سے ملے گا۔ اس کی معصوم صورت آنکھوں اور دل میں بس گئی تھی۔ وہ اپنی انا کو شکست دے رہا تھا۔ قاسم نے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر کنفرم کیا تھا کہ وہ آ رہا ہے ان کے گھر، تو اس نے کہا تھا بس نکل رہا ہوں۔ گھر میں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر ہے، معلوم نہیں کب واپس آئے۔ خنسا اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ یہاں؟ وہ اپنی حیرانگی چھپا نہیں پائی تھی۔ ہاں، تمہارے بابا نے نہیں بتایا، وہ مجھے یہاں تمہارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ تم یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ وہ کھانے کی میز پر اسے غور سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اس کے نازک سراپے پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ انا کا بت ٹوٹا تو اسے نظر آیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، محرم ہے۔ 19، وہ سر جھکا کر بولی تو وہ سر ہلانے لگا۔ میں تمہارے کمرے میں سوؤں گا، وہ اچانک بولا تو خنسا نے نفی میں سر ہلایا۔ قاسم انکل نے بتایا ہے تمہاری حالت رات میں بگڑ جاتی ہے، اس لیے کوئی بحث نہیں۔ وہ اسے دھمکی دے گیا۔ اس وقت وہ بالکل پولیس والا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا خنسا کو بیوی مان لیا ہے تو گھر والوں کو کیسے منوائے۔ میں قاسم انکل کے آتے ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، ہم دوسرے شہر شفٹ ہو جائیں گے، اپنی پوسٹنگ اور تمہارا ٹرانسفر وہیں ہو جائے گا۔ اب سوچ لیا ہے، تم میری قسمت میں ہو، میری بیوی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو خنسا نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ اس نے سونے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بھاگ کر بیڈ پر لیٹ گئی، اور وہ ہنس دیا کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ شاید پہلی بار اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا سونے کے لیے تو خنسا نے چادر مٹھی میں لی۔ ریلیکس مائی گرل، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ خنسا کو لگا وہ خود کو کھو دے گی۔ اب وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ وہ صبح اسٹیشن کے لیے اٹھا تو وہ سو رہی تھی۔ اسے بنا جگائے وہ چلا گیا اور واپس شام میں جلدی لوٹ آیا کہ وہ اکیلی ڈر نہ رہی ہو، اور وہ مزے سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ایاز اس کی پشت پر کھڑا اس کی تھوڑی سہلانے لگا تو وہ جھٹکے سے پلٹی اور اسے دیکھ کر نروس ہو گئی۔ میں نے انکل سے بات کر لی ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے جیسے دھتکار رہا تھا اب اتنا ہی خنسا کے لیے بے چین تھا۔ وہ سر ہلانے لگی اور پھر تیار ہوتی وہ ایاز شاہ کے ساتھ دوسرے شہر جا رہی تھی۔ وہاں آنے سے پہلے ایاز نے ایک بار پھر پوچھا تھا
वो खंसा को कबूल करते हैं कि नहीं। उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर अयाज ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि वो खंसा को लेकर यहाँ से जा रहा है। वो अपनी बीवी के बारे में एक बात बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने उसे नाजायज़ कहा वो उसको नहीं छोड़ेगा। सब अपनी जगह खामोश हो गए। वो खंसा को लेकर दूसरे शहर आया। उसने घर लिया और दोनों मिलकर 1 हफ्ता लगाकर वो घर सेट कर रहे थे। अब आप कभी अपने घर नहीं जाएंगे? आप कैसे दूर रह सकते हैं उनसे? वो परेशानी से पूछने लगी। उसने करीब आते खंसा के कंधों पर रखा दुपट्टा उतार दिया तो वो उसे देखने लगी। वो मेरी फैमिली है और मैं उनसे और वो मुझसे दूर नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्हें मुझे कबूल करना होगा। हमारे बच्चे इस मामले में मददगार साबित होंगे। वो उसकी थोड़ी सहलाए हुए बोला। बच्चे? वो हैरान हुई। हाँ, हमारे बच्चे। पहले मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन जब से तुम्हें चाहा है तुम्हारे जैसे बच्चों की चाह होने लगी है। वो मुस्कुराकर उसे करीब करता माथे पर बोसा दे गया। क्या आप मुझे चाहते हैं? वो हैरत से पूछने लगी। हाँ, अपनी फैमिली को इसलिए तो नहीं छोड़ा। तूफानी किस्म की मोहब्बत जो हो गई है मुझे। वो उसे नरमी से हाथ थामते हुए बोला तो वो हैरान होती। उसने खंसा की आंखों पर बोसा दिया और उसने इत्मीनान से सर अयाज शाह के सीने से टिका दिया। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे उम्मीद है आपको आज की कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।